Hello everyone. Today we are going to read about the financial market. So financial market क्या है? तो financial market facilitate the interaction between those who need capital and those who have capital to invest. Financial market facilitates interaction between एक तो जिनको कैपिटल का जरूरत है और दूसरे जो कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं. So financial market based on the duration of fund, it is divided into two types. First is money market and second one is capital market. Based on duration of funds. Based on duration of fund, two types के हैं, money market and capital market. Money market is a short term fund for less than 1 year and capital market is for long term for a more than 1 year. Secondly, financial market is again of two types based on the security issued. First is primary market and second is secondary market. Primary market क्या है? Primary market where instrument is issued for a first time. Secondary market already issued instrument are traded. जो इंस्ट्रूमेंट पहले से ही इशू किया गया है उसी को ट्रेड हो रहा है सेकेंडरी मार्केट में. ये तो हो गया सिक्योरिटी बेसिस पे. फाइनेंशियल मार्केट के टू टाइप्स हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले ड्यूरेशन के बेसिस पे, ड्यूरेशन ऑफ फंड के बेसिस पे टू टाइप्स, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी इशूड, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. देन थर्ड वन इज व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज इशूड. One can raise the money by issuing bond. Bond is a debt instrument that is issued by a company. That a company issued a bond in a market and received a money from a investors. So this bond is a debt instrument जिसमें कि जितना अमाउंट लिया है वो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया है. इसमें कुछ इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट जो कि पीरियोडिकली पे किया जाएगा. इक्विटी क्या है? इक्विटी इज अ इशूइंग अ शेयर इन अ मार्केट. जो शेयर खरीदेगा उसको ओनरशिप भी मिलेगा, ओनरशिप ऑफ द कंपनी. तो इक्विटी क्या है कि कोई कंपनी है, उसने शेयर इशू किया है इन द मार्केट एंड रिटर्न में उसको क्या मिला? कैपिटल. बट जो शेयर खरीदेगा उसको उसका कुछ पार्ट ओनरशिप भी मिलेगा, जो कि डेब्ट के केस में नहीं था. इसमें ओनरशिप नहीं मिल रहा था, बट इन केस ऑफ इक्विटी इसमें ओनरशिप भी मिलेगा. एंड इक्विटी मार्केट में क्या होगा? जब कंपनी को कोई भी कंपनी को कोई भी प्रॉफिट होगा तो जो शेयर होल्डर है उसको उतना डिविडेंड मिलेगा प्रॉफिट का. सो वन बाय वन हम लोग ये सारे टाइप्स, फाइनेंशियल मार्केट्स के टाइप्स को पढ़ेंगे. सो फर्स्ट let's start with the money market. Money market is regulated by RBI. Money market is regulated by a RBI, and this money market provides the meeting point for the demand and supply of short-term fund. Money market provides the meeting point for demand and supply of short-term funds. Then it provides access to investors and uses short-term fund to fulfill their borrowing and investment requirement at efficient market clearing price. Then it provides a market for a central bank intervention, and the interest rate in this market are indicators of short-term liquidity position in the financial system. Now we will read about the instruments of money market one by one. So first, let's start with the treasury bill. This treasury bill is a short-term debt instrument. This is issued by a central
गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं इशू कर सकता है. ट्रेजरी बिल्स इज issued only by a central government. And maturity period of 91 days, 182 days, 364 days. These are zero coupon securities and pay no interest. They are issued at a discount and redeemed at face value at maturity. जैसे कि इस बिल का फेस वैल्यू है 100 रुपीज, तो ये डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू किया जाएगा. लाइक 90 रुपीज में इसको इशू किया गया कि ये इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू किया जाता है ट्रेजरी बिल्स को. कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. मैच्योरिटी पीरियड 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज एंड जीरो कूपन रेट, नो इंटरेस्ट पेमेंट, issued at a discount and redeemed at face value at maturity. Next है cash management bills. This is similar to treasury bills only. ये भी central government issue करता है and maturity period इसका 91 days है. This is also issued at zero coupon rate, then issued at discount and redeemed at a face value. Next है call, notice, term money market. If the borrowing is for one day, it is known as call money market, call money. Then if the borrowing is more than 1 day and less than 14 days, it is known as notice money. Then for more than 14 days but less than 1 year, it is known as term money. जो भी एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स होंगे इसके, they are free to decide the interest rate of borrowing. London Interbank Offer Rate, ये क्या होता है? It is a globally accepted benchmark interest rate that indicates borrowing cost between the banks. अभी due to several various controversies, जो लाइबर है इसको रिप्लेस्ड किया गया by a secured overnight financing rate. Mumbai Interbank Offer Rate, it is an interest rate benchmark used by banks to borrow unsecured funds in Indian interbank market. LIBOR कहाँ यूज होता है? ग्लोबली एक्सेप्टेड बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है एंड MIBOR इज फॉर इंडियन इंटरबैंक मार्केट. नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है फॉर मनी मार्केट इज सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स. इन सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स बैंक इश्यूज अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स टू आर इन्वेस्टर्स. इन रिटर्न इन्वेस्टर्स बैंक को मनी देता है. बट ये जो CD है, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स है, दिस कैन नॉट बी यूज्ड टू टेक अ लोन फ्रॉम अनदर बैंक. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या है? इट इज इशूड बाय अ बैंक फॉर अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 year. इट इज इशूड ऑन अ मिनिमम डिपॉजिट्स ऑफ 5 lakhs rupees and in multiple of 5 lakhs. And tenure is not less than 7 days and not more than 1 year. इसमें क्या होता है? जो बैंक है वो इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स टू इन्वेस्टर्स बदले में उसको पैसा देगा. ओके, बट ये जो CD है, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स है, इसको इन्वेस्टर्स लोन लेने के लिए नहीं यूज़ कर सकता है दूसरे बैंक से. ये हो गया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स. ये जब बैंक इशू करता है तब ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है. सेम चीज़ अगर कोई कंपनी और कॉरपोरेट इशू करता है इन्वेस्टर्स को, तो वो कमर्शियल पेपर्स होता है. कमर्शियल पेपर्स इशू करता है कंपनी और कॉरपोरेट टू इन्वेस्टर्स, बदले में उसको मनी देता है. ये सिमिलर है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के जैसा ही, बस इसमें डिफरेंस क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स बैंक इशू कर रहा है एंड कमर्शियल पेपर कंपनी और कॉरपोरेट इशू कर रहा है. नेक्स्ट है ट्रेड बिल्स. ट्रेड बिल्स, इसको ही बिल ऑफ एक्सचेंज एंड कमर्शियल बिल कहते हैं. इसमें क्या है? कोई दो कंपनी है, कंपनी A एंड कंपनी B. कंपनी B ने कंपनी A को कोई मटेरियल दिया, कोई मटेरियल सप्लाई किया है, बदले में कंपनी A कंपनी B को मनी ना दे करके, पैसा ना दे करके बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है. बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रेड बिल दिया है. अब ये तो इसने मटेरियल दिया, बदले में इसको बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, पैसा नहीं मिला किसी को भी, पैसे का एक्सचेंज कहीं भी नहीं हुआ है. तो नाउ अगर मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही कंपनी B को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज को ही कैन सेल द कंपनी B कैन सेल
this bill of exchange to bank. This is called as discount of bill of exchange. बैंक इसको रीडिस्काउंट कर सकती है. तो हमने देखा कि जितने भी अभी हमने पढ़ा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स या कमर्शियल पेपर्स, ये सब में मनी का एक्सचेंज हो रहा था. बट इन केस ऑफ ट्रेड बिल और बिल ऑफ एक्सचेंज में मनी का एक्सचेंज नहीं हुआ है. कंपनी ए एंड कंपनी बी में कंपनी बी ने कंपनी ए को मटेरियल दिया, बट बदले में कंपनी ए ने बी को पैसे नहीं दिए हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है. नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है? रेपो ऑपरेशंस. दिस रेपो refers to transactions in which a participants acquire immediate fund by selling a bank. जो है ये इन इंडिया वी हैव टू रेपो. फर्स्ट इज़ आरबीआई रेपो एंड इंटर बैंक रेपो. आरबीआई रेपो में क्या होता है, जो बैंक है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देती है आरबीआई को, एंड आरबीआई बदले में बैंक को मनी दे रही है. साइमल्टेनियसली एग्रीइंग फॉर द रीपर्चेस ऑफ दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एट अ गिवन प्राइस आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम एट अ गिवन प्राइस. अगर ये आरबीआई और बैंक के बीच में हो रहा है तो इसको आरबीआई रेपो कहते हैं. एंड दो बैंक 1 और बैंक बी 2 के बीच में हो रहा है तो दिस इज़ नोन एज इंटर बैंक रिपोज. नेक्स्ट है कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑपरेशन. इट इज़ अ मैकेनिज्म टू बोरो एंड लेंड फंड्स अगेंस्ट सिक्योरिटी थ्रू अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय अ क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. इंडिया लिमिटेड जो भी या तो बोरो करने का या लेंड करने का फंड्स का अगेंस्ट सिक्योरिटीज़, ये एक प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रहा है प्रोवाइडेड बाय अ क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. इट इज़ बेटर देन द रिपो ऑपरेशंस. रिपो मार्केट, एज रिपो मार्केट में आप रीपर्चेस कर सकते हैं बट आफ्टर अ मैच्योरिटी पीरियड, बट इन दिस केस ये मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही इसको सेटल्ड किया जा सकता है. नाउ व्हाट इज़ दिस क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? It is a central counterparty that provides clearing and settling of transaction in government securities, foreign exchange and money markets in the country. After money market, let's start with the capital market. Capital market deals with the financial instrument having maturity of more than 1 year. इसके दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डेब्ट एंड इक्विटी. कैपिटल मार्केट दैट डील्स विद द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैविंग मैच्योरिटी ऑफ मोर देन 1 ईयर, एंड इसके दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डेब्ट एंड इक्विटी. डेब्ट को दो तरह से इशू किया जा सकता है, बाय इशूइंग अ बॉन्ड और डिबेंचर. बाय इशूइंग अ बॉन्ड और डिबेंचर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो अगर गवर्नमेंट इशू करता है तो उसको हम लोग बॉन्ड कहते हैं, एंड इफ डेब्ट इज इशूड बाय एनी कंपनी और एनी कॉर्पोरेट देन दिस इज नोन एज डिबेंचर. ओके, इफ बॉन्ड इज इशूड फॉर लेस देन 1 ईयर देन दैट इज नोन एज ट्रेजरी बिल, एंड इफ इट इज फॉर मोर देन 1 ईयर दिस इज नोन एज डेटेड सिक्योरिटीज. दिस इज इशूड बाय अ स्टेट development. Securities issued by a government is known as gilt edged securities. तो डिबेंचर कौन इशू करता है? एनी कॉर्पोरेट और एनी कंपनी, एंड बॉन्ड इज इशूड बाय अ गवर्नमेंट. सो नाउ लेट्स रीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ bonds. फर्स्ट इज फिक्स्ड रेट बॉन्ड. फिक्स्ड रेट बॉन्ड है, दीज आर बॉन्ड्स ऑन विच जो कूपन रेट है इनका, जो कूपन रेट इज फिक्स्ड फॉर इंटायर लाइफ ऑफ द बॉन्ड्स. ये हो गया फिक्स्ड रेट बॉन्ड, इनका कूपन रेट फिक्स्ड रहेगा फॉर इंटायर लाइफ ऑफ द बॉन्ड्स. नेक्स्ट आता है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स. दिस फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स हैज़ अ वेरिएबल कूपन रेट. नाम से ही पता चल रहा है फिक्स्ड रेट बॉन्ड, तो उसका कूपन रेट फिक्स्ड है फॉर इंटायर लाइफ. देन फ्लोटिंग है तो उसका कूपन रेट इज वेरिएबल. देन कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स. द प्रिंसिपल ऑफ दिस बॉन्ड्स इज लिंक्ड टू एन इन्फ्लेशन इंडेक्स विद अ व्यू टू प्रोटेक्ट ओनली अ प्रिंसिपल अमाउंट. फिर इसके बाद गवर्नमेंट ने एक और बॉन्ड निकाला जो कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है, जिसमें कि
प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट रेट दोनों प्रोटेक्टेड रहता है, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्फ्लेशन। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स में क्या है, ओनली प्रिंसिपल अमाउंट है वो प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्फ्लेशन रहेगा, बट इन केस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स प्रिंसिपल अमाउंट और इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट जो है दोनों प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अ इंटरेस्ट रेट। देन आता है परपेचुअल बॉन्ड। परपेचुअल बॉन्ड क्या है, परपेचुअल बॉन्ड का कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है। दीज बॉन्ड्स हैव नो मैच्योरिटी डेट एंड ऑफर रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट, पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट मिलता रहेगा परपेचुअल बॉन्ड्स में, कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं है एंड पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट। देन रेगुलर बॉन्ड्स, नॉट रेगुलर, ग्रीन बॉन्ड्स। ग्रीन बॉन्ड्स क्या है, जो भी इसका प्रोसीड्स होगा, प्रोसीड्स ऑफ दिस बॉन्ड्स सपोर्ट अ स्पेसिफिक क्लाइमेट रिलेटेड एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स। ग्रीन बॉन्ड किसको प्रोटेक्ट करेगा, क्लाइमेट रिलेटेड एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स को। देन जो ग्रीन बॉन्ड जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, ब्लू बॉन्ड जो ओशन एंड सी को प्रोटेक्ट करेगा। फिर आता है मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड क्या है, कोई भी इंडियन कंपनी, इंडिया में कोई भी इंसान जो आउटसाइड में ऑफशोर में बॉन्ड इशू करेगा इन रुपी, दिस इज अ मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड क्या है, मसाला बॉन्ड इज ऑफशोर रुपी बॉन्ड। देन next bond is convertible bond. This convertible bond, it is a type of debt instrument that provides an investor with a right or an obligation to exchange the debt for a predetermined number of share in the issuing company. ये जो एक कंपनी है, कोई एक कंपनी है एंड ये इन्वेस्टर है, तो ये जो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स होता है ये इट प्रोवाइड अ राइट टू इन्वेस्टर टू एक्सचेंज, जो डेब्ट दिया है वो एक्सचेंज कर सकता है डेब्ट को फॉर अ प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ शेयर इन अ इशूइंग कंपनी। ये एक हाइब्रिड सिक्योरिटी है, इट हैज़ फीचर ऑफ बोथ डेब्ट एंड इक्विटी। नाउ द इक्विटी में क्या है कि जो ओनर पार्ट ओनरशिप ऑफ द कंपनी मिलेगा टू द इन्वेस्टर, पार्ट ओनरशिप टू द इन्वेस्टर। इसमें से फर्स्ट आता है वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट एक तरह का फर्म है, एक तरह का कंपनी है जो कि कोई स्टार्टअप में, बहुत ही अर्ली स्टेज पे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करती है। दिस इज वेंचर कैपिटलिस्ट। अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट की है टू हेल्प देम टू ग्रो। जैसे कि कोई कंपनी ए है, इसके पास कोई आइडिया है टू स्टार्ट अ न्यू स्टार्टअप, तो अब इसके पास आइडिया तो है बट ये इसके पास मनी चाहिए, तो इसको इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है, ये एक प्रॉपर फर्म है, ये प्रॉपर एक कंपनी है जो कि अर्ली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है एंड जिसमें कि सर्टेन ग्रोथ पोटेंशियल होता है। बदले में ये कंपनी इस फर्म को कुछ शेयर देती है। वेंचर कैपिटलिस्ट जो है ये वेरियस अदर इंस्टीट्यूट से फंड्स रेज करती है और फिर ये है सो कंपनी को मनी देगी और बदले में कंपनी इसको क्या देगी, एक शेयर देगी, शेयर जिससे कि ये पार्ट ओनरशिप रहेगा। वेंचर कैपिटलिस्ट अर्ली स्टेज में इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, बदले में इसको कुछ पार्ट ओनरशिप मिलेगा। सो वेंचर कैपिटलिस्ट एक प्रॉपर कंपनी है, प्रॉपर फर्म है जिसका कि पर्पस ही है टू इन्वेस्ट मनी इन अ company in early stage. Angel investors are certain high net worth individual which offer financial assistance at a very early stage of a venture. They are not as organized as the venture capitalist and provide capital ऑन अ कंसेशनल इक्विटी टर्म्स। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है, एक प्रॉपर फर्म है, प्रॉपर कंपनी है जो कि उसका पर्पस ही है इन्वेस्ट करना कोई स्टार्टअप में इन वेरी अर्ली स्टेज। ये एंजल इन्वेस्टर्स क्या है, एंजल इन्वेस्टर्स आर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है टू द स्टार्टअप इन एट अ वेरी अर्ली स्टेज। वेंचर कैपिटलिस्ट एक प्रॉपर कंपनी है जो कि मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगी और ये प्रॉपर शेयर लेगी। ओके
ये और जो ये एंजल इन्वेस्टर्स है ये एक कोई इंडिविजुअल है जिसके पास की हाई अमाउंट नेट वर्थ है, इंडिविजुअल है, उसके पास बहुत पैसा है, तो वो इट कैन बी योर फ्रेंड, नेबर एंड रिलेटिव जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी एट वेरी अर्ली स्टेज. दे प्रोवाइड कैपिटल ऑन अ कंसेशनल इक्विटी. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज. डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज में है क्या आता है कि पब्लिक इश्यूज व्हेन अ company raises fund by selling its share to a public through issue of offer document. It is called as public issue. कोई कंपनी है जो वो मनी रेज कर रही है, फंड रेज कर रही है बाय सेलिंग इट्स शेयर टू अ पब्लिक, इसको कहते हैं पब्लिक इशू. तो ये कितने डिफरेंट. नाउ वी विल रीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इशू. सो फर्स्ट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर्स. इनिशियल पब्लिक ऑफर्स में क्या है कि कोई भी अनलिस्टेड कंपनी making a public issue for the first time then and gets its share listed on the stock exchange. It is called as initial public offer. ये एकदम न्यू शेयर्स इशू किया जा रहा है, फर्स्ट टाइम किया जा रहा है. देन आता है फॉलो प्राइस ऑफरिंग्स. फॉलो प्राइस ऑफरिंग्स में क्या होता है, व्हेन अ listed company makes another public issue to raise a capital, it is called as follow up offer. फर्स्ट में क्या था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में क्या था, एनी अनलिस्टेड कंपनी मेक्स अ पब्लिक इशू फॉर द फर्स्ट टाइम एंड गेट्स इट्स शेयर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. ये है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. दूसरा हो गया फॉलो पब्लिक ऑफरिंग्स. कोई भी अनलिस्टेड कंपनी है, any unlisted company issuing a public issue for the first time and gets its share listed on the stock exchange. ये हो गया initial public offer. Second है follow up offer. इसमें क्या होता है, any listed company makes another public issue to raise capital. It is a follow up offer. इसके बाद आता है private placement. Private placement क्या है, जो कंपनी ऑफर इट्स शेयर टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स. इसमें क्या था, एक पूरे पब्लिक को ऑफर किया जा रहा था, बट इन प्राइवेट प्लेसमेंट एक कोई स्मॉल ग्रुप को ऑफर किया जा रहा है, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ इन्वेस्टर्स को ऑफर किया जा रहा है. इसको कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट. ये हो गया दो टाइप्स के, प्रेफरेंशियल इश्यूज एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट. प्रेफरेंशियल इशू में क्या हो गया, प्रेफरेंशियल इशू शेयर्स गिवन टू अ सर्टेन individual certain individual and shareholder in possession of these shares receives dividend before the ordinary shareholders. उसके बाद आता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट ये भी प्राइवेट प्लेसमेंट का ही टाइप है, जिसमें कि गिवन टू अ सर्टेन क्वालिफाइड बायर्स को दिया जाएगा हु हैव रिक्विसाइट फाइनेंशियल नॉलेज है, जिनके पास एन एक्सपर्टीज टू इन्वेस्ट इन द कैपिटल मार्केट. तो प्राइवेट प्लेसमेंट में हो गया कि कोई स्मॉल ग्रुप को इशू किया जा रहा है शेयर्स, स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को. इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में हो गया कि फर्स्ट टाइम इशू किया जा रहा है. देन फॉलो अप ऑफरिंग में होता है कि सेकेंड टाइम इशू किया जा रहा है. उसके बाद आता है ऑफर फॉर सेल. इसमें क्या होता है, कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है कंपनी का, वो इशू कर रहा है टू अ पब्लिक, और उसको बदले में जो मनी मिल रहा है, इन सब केसेस में क्या हो रहा था, जो मनी मिल रहा था वो किसको मिल रहा था, कंपनी को मिल रहा था. लेकिन ऑफर फॉर सेल में क्या हो गया, जो मनी मिलेगा वो कंपनी को नहीं मिलेगा, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है जो कि अपना शेयर बेच रहा है उसको मिलेगा मनी. ये हो गया ऑफर फॉर सेल. देन सेकेंड इज राइट्स इशू. इसमें क्या होता है, कंपनी फंड रेज कर रही है जो पहले से ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उससे. Right issue when a company raises funds from its existing shareholder by selling them new shares. This is known as right issues. तो कितने issues हुए, initial public offerings, then follow up offerings, then private placement, offer for sale, then rights issues. Now the primary market and secondary market. Primary market when the share or debt are offered for public for the first time. Okay, and secondary market में for the second time. In primary market, investment bankers जो होते हैं they do the selling in primary market. In secondary market क्या होता है, जो brokers होते हैं they act as a intermediary for the trade. Then price determined by the company in case of primary market, and price forces of the supply and demand determine the
price in case of secondary market. Second is in primary market कंपनी जो भी गेन हुआ होगा सेल से सिक्योरिटीज़ का, उससे किसको गेन होगा? कंपनी को. बट इन केस ऑफ सेकेंडरी मार्केट इन्वेस्टर्स को गेन होगा. इन्वेस्टर्स गेन्स थ्रू द एप्रिसिएशन ऑफ द सिक्योरिटीज़. प्राइमरी मार्केट में कंपनी को गेन होगा. एंड सिक्योरिटीज़ कैन बी सोल्ड वंस इन केस ऑफ प्राइमरी मार्केट एंड whereas the sale and purchase is continuous process in case of secondary market. प्राइमरी मार्केट में सिर्फ एक बार सेल किया जा सकता है. Securities can be sold once only, but in case of secondary market, sale and purchase is a continuous process. Now let's read about the stock exchange. Stock exchange क्या है? Stock exchange is a centralized marketplace where securities such as stocks, bonds, and derivatives are bought and sold by the investors. So stock exchange में क्या होता है कि investors उसको जो securities होते हैं उसको खरीदते हैं या बेचते हैं. That is called stock exchange. Two famous stock exchanges in India are Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. Bombay Stock Exchange कब establish हुआ था? In 1875. National Stock Exchange in 1992. So now Bombay Stock Exchange, this provides efficient and transparent market for trading. Efficient and transparent market for trading. Trading in equity and currencies, debt instruments, derivatives and mutual funds. स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? जो भी ब्रॉड बाय एंड सेल होता है वो ट्रेडिंग बिटवीन द इन्वेस्टर्स होता है. इसमें कंपनी का कोई काम नहीं होता है. कंपनी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करेगा. जो भी इन्वेस्टर्स बाय या सेल करने वाले हैं वो दैट इज कैरिड आउट थ्रू अ ब्रोकर्स. हर स्टॉक एक्सचेंज का रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होंगे जो कि हेल्प करेंगे, हेल्पिंग डूइंग दिस ट्रेड इन स्टॉक एक्सचेंज. मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज जो स्टॉक एक्सचेंज में होगा बाय एंड सेल का, वो कौन करेंगे? ब्रोकर्स करेंगे. एंड दिस क्लियरिंग हाउस किसके लिए है? फॉर सेटल द ट्रांजैक्शन. That is Clearing Corporation of India Limited. This is for settling the trade between the two parties. तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हमने पढ़ा कि ये दिस प्रोवाइड्स एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट फॉर ट्रेडिंग. एंड दिस इंडिया क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, this is wholly owned subsidiary of the BSE. This acts as a central counterplay for the trades executed on this platform. And BSE has recently launched India INX, which is India's first international exchange located in the Gift City, Gujarat. And in case of National Stock Exchange, National Stock Exchange has opened a subsidiary in the Gift City similar to the India INX, that is National Stock Exchange IFSC Limited in Gift City only. This National Stock Exchange is India's first dematerialized electronic exchange. Now, what is this Sensex? This is tracking the price movement of 30 well-established company listed in Bombay Stock Exchange. Tracking the movement of 30 well-established company listed in Bombay Stock Exchange. This Sensex is calculated through a market capitalization. Market capitalization कैसे calculate कर? Market capitalization is number of shares in public multiplied by the current share price. Market capitalization and MCAP is equal to number of shares in public multiplied by the current share price. Sensex is calculated by the MCAP value of today minus MCAP of the base year. Base year कब का? 1979. Sensex is equal to MCAP value of present minus MCAP of base year, that is 1979.
सिमिलरली जैसे कि सेंसेक्स में 30 वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी लिस्टेड इन अ बीएसई, उसका प्राइस मूवमेंट वो कैलकुलेट करते हैं. सिमिलरली इन केस ऑफ द निफ्टी 50 में 50 कंपनी जो कि लिस्टेड है अंडर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसको कैलकुलेट करेंगे बाय टेकिंग एवरेज बेस ईयर 1995. And what is Nifty Junior? It is for the next 50 companies. Now, depository. Depository क्या होता है? Depository is an organization that holds securities of the investors in an electronic format. Depository holds securities of investors in an electronic format through um, through a registered depository participant. This depository participant is an agent provide interface for investor to access depository sources. There are two depositories in India. National Securities Depository Limited is promoted by the National Stock Exchange and Central Depository Services Limited. This is promoted by the Bombay Stock Exchange. The depository क्या है? That holds securities of the investors in an electronic format. दो टाइप्स के हैं in India. National Securities Depository Limited promoted by National Stock Exchange, then Central Depository Services Limited promoted by Bombay Stock Exchange. Now the derivatives. Derivatives क्या है? A derivatives is a financial instrument set between two parties having no value of its own. उसका खुद का कोई वैल्यू नहीं है, but deriving their value from the underlying assets. Underlying assets में क्या क्या हो सकता है? या तो शेयर हो सकता है, कमोडिटी हो सकता है, करेंसी हो सकता है. Derivatives एक financial instrument है set between two parties. Derivative is a financial instrument set between the two parties having no value of its own but deriving their value from the underlying asset. Derivatives, the various derivative instruments, this includes futures contract, then option contract, then swap. So first we will read about the future contract. Future contract में क्या होता है? They put obligation on the party. They put obligation on the party to buy or sell the asset at a predetermined future date, price and quantity. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? ए एंड बी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि इन अ प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट, प्राइस एंड क्वांटिटी पे ये लोग बाय या सेल करेंगे एसेट को. लेट्स टेक एग्जांपल. ए एंड बी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि आफ्टर 1 ईयर 10 kg ऑफ राइस 100 रुपीज में खरीदेंगे वो लोग आफ्टर 1 ईयर. प्रीडिटरमाइंड डेट हो गया 1 ईयर, देन प्राइस, देन क्वांटिटी. प्रीडिटरमाइंड डेट, प्राइस एंड क्वांटिटी पे इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया. तो फ्यूचर में क्या होगा कि 1 ईयर के बाद अगर राइस का प्राइस 110 रुपीज होता है तो भी बी को ए से 100 रुपीज में ही बाय करना पड़ेगा. एंड इफ 90 रुपीज भी हो जाता है, कम प्राइस हो जाता है, इन दैट केस ऑल्सो बी को ए से 90 रुपीज में राइस को खरीदना होगा. दिस इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. Now, this is next is option contract. Option are financial derivatives that gives buyer or seller the right but not obligation to buy or sell the underlying asset at an agreed upon the price or a date. फ्यूचर में क्या था? ऑब्लिगेशन था कि आपको लेना ही पड़ेगा, प्रीडिटरमाइंड डेट, प्राइस और क्वांटिटी पे लेना ही पड़ेगा. बट इन केस ऑफ ऑप्शन राइट देता है बट ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको लेना ही पड़ेगा. इन केस कि अगर 110 रुपीज का हो जाता है राइस और 90 रुपीज का हो जाता है तो 90 रुपीज में तो फ्यूचर में तो हमें कम में खरीदना पड़ेगा और हमने एग्रीमेंट कर रखा है 100 रुपीज का. तो इस केस में जो है, जो बी जो है इसको एक प्रीमियम अमाउंट पे करेगा जो कि पहले से ही सेट रहेगा. प्रीमियम अमाउंट लेट्स टेक ₹10 इसको पर केजी के अकॉर्डिंग से इसको पे करेगा एंड ये इस कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट कर सकता है. ओके, सो दिस इज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में था कि ऑब्लिगेशन था, करना ही खरीदना ही पड़ेगा, बाय और सेल करना ही पड़ेगा जिसपे प्रीडिटरमाइंड प्राइस, क्वांटिटी और डेट पे. बट इन ऑप्शन यहाँ पे राइट है बट नॉट ऑब्लिगेशन. तो
कॉल ऑप्शन होता है जहां की कॉल ऑप्शन in that case holder has the right but not the obligation to buy at a decided price, and put option क्या होता है, a right but not the obligation to sell at a decided price. call option buy के लिए होता है, put option for a sell. The option exercisable before expiry date, it is called American option, and if the option exercisable only on the expiry date, then it is European option. ऑप्शन एक्सरसाइज एक्सपायरी डेट से पहले अगर हम लोग उसको यूज करते हैं तो अमेरिकन हो गया, अमेरिकन ऑप्शन, एंड इफ ऑन ओनली ऑन द एक्सपायरी डेट देन इट इज यूरोपियन ऑप्शन. थर्ड डेरिवेटिव जो है दैट इज स्वैप एग्रीमेंट. स्वैप एग्रीमेंट क्या है? स्वैप एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज where there is exchange, where they exchange their cash flows or liabilities. One party promises to make a series of payments in exchange of receiving another set of payment. जो A party है, A party promises to B party to make a series of payments in exchange of receiving another set of payment from the second party B. They swap. Let's take example. A जो एक पार्टी ए जो है इसने लोन लिया P1, इसका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो इसको पे करना पड़ता है दैट इज वेरिएबल, ओके, एंड पार्टी बी लोन P1, इसका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो दैट इज फिक्स्ड. तो बी ने ए से के साथ एग्रीमेंट किया कि आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट है और वो बी पे करेगा, एंड इसके बदले में जो बी का फिक्स्ड इंटरेस्ट है वो ए पे करेगा. जैसे कि बी का अगर फिक्स्ड इंटरेस्ट 20 रुपीज है एंड ए का वेरिएबल है, कभी 20 होता है, कभी 25 होता है, तो कभी 15 होता है. तो अगर कम होगा तो बी को फायदा होगा ना, अब इसको तो हमेशा फिक्स था, इसका 20 रुपीज ही पे करना था इसको ऑल टाइम, और ए को वेरिएबल था, कभी 15 हो जाता है, कभी 20. इंटरेस्ट रेट इसका कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी बढ़ जाता है, ठीक है. तो बी जो भी इंटरेस्ट पेमेंट होगा ए का वो बी पे करेगा, वो 15 होगा तो भी इसका, तो भी 20 होगा तो भी, और 25 होगा तो भी, ओके. एंड ए फिक्स पेमेंट 20 रुपीज ही पे करेगा हमेशा. दिस इज व्हाट वी कॉल स्वैप एग्रीमेंट. नेक्स्ट डेरिवेटिव्स है डिपॉजिटरी रिसिप्ट. इसमें क्या होता है, अगर कोई इंडियन कंपनी को कोई फॉरेन कंट्री में मनी रेज करना है, वहां से मनी रेज करना है, तो एक तो तरीका है कि एफडीआई से आ सकता है, बट उसमें बहुत से रेगुलेटरी नॉर्म्स होंगे. तो देयर इज अनदर दैट इज डिपॉजिटरी रिसीट. डिपॉजिटरी रिसीट क्या है? इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट issued by a bank to represent shares in a foreign public company, which allows the investors to trade in a global market. कोई इंडियन कंपनी है, एनी इंडियन कंपनी इश्यूज शेयर्स टू कस्टोडियन बैंक को शेयर इशू करती है. देन यहाँ से फॉरेन कंट्री में जाकर के डिपॉजिटरी बैंक में इंडियन कंपनी डिपॉजिट शेयर टू अ कस्टोडियन बैंक. देन डिपॉजिटरी बैंक जो है सो गेट्स दिस शेयर्स बाय अ कस्टोडियन बैंक. So any Indian bank shifted share to a depository bank. So based on these share, depository bank यहाँ पे issue करेगी foreign country में depository receipt. Depository bank ने यहाँ पे issue foreign country में depository receipt issue किया है, जिसका कि जो underlying value कहाँ से आ रहा है, जो शेयर से, शेयर जिसने इंडियन कंपनी ने कस्टोडियन बैंक में शेयर इशू किया था, डिपॉजिट किया था या इशू किया था. So now the investors in foreign country investors in the foreign country जो है वो इन्वेस्ट करेगी डिपॉजिटरी रिसीट पे, एंड बदले में going to give a money. Then this money flows from depository bank to a custodian bank to a finally to a company. तो ये ना कंपनी फॉरेन कंट्री में जा रही है और ना ही इन्वेस्टर आ रहा है दूसरे फॉरेन कंट्री में. यहाँ इंडियन जो भी कंपनी है फॉरेन कंट्री की, ये शेयर इशू कर रही है कस्टोडियन बैंक में, कस्टोडियन बैंक से फिर यहाँ पे डिपॉजिटरी बैंक में शेयर आ रहा है. देन डिपॉजिटरी बैंक यहाँ पे डिपॉजिटरी रिसीट इशू कर रही है, जिसमें कि फॉरेन कंट्रीज के इन्वेस्टर्स जो है वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे, रिटर्न में मनी देंगे.
एंड डिपॉजिटरी रिसीट का अंडरलाइंग वैल्यू कहाँ से आ रहा है, तो शेयर से आ रहा है। तो ये जो मनी है ये फ्लोज फ्रॉम डिपॉजिटरी बैंक टू अ कस्टोडियन बैंक टू फाइनली टू अ कंपनी इन अ फॉरेन कंट्री। अगर ये इंडियन कंपनी जो शेयर इशू कर रही है और जहां से मनी रेज हो रहा है, मनी रेजेस फ्रॉम अमेरिका, then this is known as American Depository Receipt. And any other country other than the America, so that is Global Depository Receipt. जैसे कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट है जिसमें कि इन्वेस्टर कहाँ के हैं, अमेरिका के, और कंपनी कहाँ की, इंडिया की। सेम चीज अगर कंपनी अमेरिका का होगा एंड इन्वेस्टर इंडिया के होंगे तो देन दैट इज इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट होगा वो। इंडिया अगर अमेरिका के अलावा वर्ल्ड में कोई और कंट्री से मनी रेज करता है तो दैट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। अमेरिका से करता है देन दैट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। एंड एनी अदर कंट्री, अमेरिका अगर अमेरिका कोई कंपनी इंडिया से मनी रेज करता है, इन्वेस्टर्स कहाँ के हैं, इंडिया के, देन दैट इज इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटरी नोट, पी नोट्स और पी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स और पी नोट्स। इसमें क्या होता है, जैसे कि फॉरेन पोर्टफोलियो होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स दे इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट्स and they are registered with the SEBI and follow the regulatory norms in Indian market. But there are some investors, कुछ investors हैं फॉरेन के जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडियन मार्केट में, बट दे डोंट वांट टू बी रजिस्टर्ड विथ अ सेबी और डोंट वांट टू फॉलो अ रेगुलेटरी नॉर्म्स। तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, so these foreign investors give certain capital to a portfolio, foreign portfolio, और ये जा कर के इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ये फॉरेन पोर्टफोलियो बदले में इन्वेस्टर्स को पी नोट इशू करता है और इसका वैल्यू कहाँ से आता है, पी नोट का वैल्यू फ्रॉम द शेयर्स जो कि खरीदा है इन्वेस्टर्स ने। ओके, सो देयर मनी गॉट इन्वेस्टेड इन इंडियन मार्केट विदाउट, ये इन्वेस्टर्स बिना रजिस्टर्ड हुए विद द सेबी में ये मनी इन्वेस्ट कर ले रहे हैं इंडियन मार्केट में। सो what is this P notes now? This is a financial instrument used by the investor to invest in the Indian securities without having to registered with the market regulator, that is SEBI. These are issued by the registered foreign portfolio investors who wish to be part of the Indian market without registration. So in financial market हमने क्या क्या पढ़ा, about money market, about capital market, then primary market, secondary market, and the stock exchanges, derivatives, depositories. So let's end here our topic, that is financial market. Thank you.